हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 10, जो कि हम करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल्स। यानी आप इसमें जो है इतिहास के चैप्टर में आप मुगल साम्राज्य के जो विस्तार के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करोगे। ये टॉपिक कई मानने में हर एक क्लास के लिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसके सिलेबस में मुगल एम्पायर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर है। तो चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे सीबीएसई से पढ़ते हों, चाहे एनआईओएस के बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा और सोचिएगा, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईओएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we have a discussing a most important point here. A second Afghan Empire is a time period is a 1540 to the 1555. There is a most important period time is a 14 years. There is a first year a Sher Shah. The Sher Shah, as I already discussed, the first Afghan kingdoms under to the Lodhis was the replaced by the Mughal under to the Babur in the 1526. After a gap of 14 years, Sher Shah succeeded in the establishing the Afghan rulers again India in 1540. Sher Shah and his successors ruled by the 15 years. The period is known as the period of the Second Afghan Empire. The founder of this Afghan ruler, Sher Shah Khan, was a great tactician and the able military commander. There is a most important here, a military commander. He have already discussed is the confessed with the Humayun. After the defecting, the Humayun become of servants as a ruler in the year 1540 and assume there is the title of Sher Shah. The Sher Shah is the most important title taken here. Sher Shah is a followed by Humayun on his flight till of the Sindh in the northern west. After the spellings, there is a Humayun. He started to the is a considering his position in the northern and the eastern India. He is a defeated and is a conquered to the Malwa in 1542, which was the flow by the Chanderis. In Rajasthan, he lead to the campaigns is against the Marwaras, is the Rathon wars, is the Nagars and Ajmer, Martha and Jodhpur and the Bikaner. He is defected to the rebellious is Afghan is a Bengal by of 1545. He had established himself as the supreme rules from the Sindh and Punjab to the wall of the Rajputana in the west and Bengal in the east. Now he is returned to about to the Bundelkhand, where will be a besiegings and therefore to the Kalnanjor. He is died in 1545 in a accidentally blast of the gunpowder. During his very rule, Sher Shah introduced very important change in administrations and revenue system. The most important ones were here the first exjudicial system. Exjudicial system is the most important here. A Sher Shah was succeeded by his son Islam Shah. Islam Shah had to face a number of conflicts with the brother
Adil Khan and many Afghan nobles. He died in the 1553. Their Afghan empire was absolutely is a beacon, and the Humayun seized on the opportunity and moved toward to the India. He again captured his lost kingdom by 1555 and ended the Second Afghan Empire. In 1555, there is a Humayun as conquered to Agra and Delhi and established to himself as the Empress of India. Before he could be consolidated his the position, he died after the falling from the stair of the level at the Sher Models in a Delhi in a 1556. यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक द्वितीय अफगानी साम्राज्य। देखिए, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि लोधी वंश के अधीन पहले अफगानी साम्राज्य के बाबर के नेतृत्व में मुगलों द्वारा 1526 में स्थापित किया गया था और 14 वर्ष के अंतराल के पश्चात 1540 में शेर शाह भारत में दोबारा अफगानी शासन स्थापित करने में सफल हो गया। यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इसके पहले जो है इब्राहिम लोधी का साम्राज्य था, लेकिन शेर शाह सूरी ने अफगानियों का जो है शासन स्थापित करके जो है बहुत बड़ी जो है सफलता का परिचय दिया। शेर शाह और उसके उत्तराधिकारियों ने 15 वर्ष तक राज्य किया और इस अवधि के द्वितीय अफगानी साम्राज्य काल के रूप में जाना जा सकता है। और इस अफगानी शासन का स्थापक शेर खान रन कौशल में कुशल और योग्य सेना नायक हुआ करता था। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो यहाँ पर शेर शाह है वो जो था हुमायूं के ही जो है सेनापतियों में से एक था, यानी बाबर के समय से जो है कुशल और सेनानायक के रूप में था। हुमायूं से उसकी जो है लड़ाई के संबंध में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हुमायूं को हराने के बाद 1540 में शेर शाह जो है सर्वप्रभुता संपन्न शासक बन गया और उसे शेर शाह का खिताब भी दिया गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। शेर शाह ने उत्तर पश्चिम में सिंध तक की चढ़ाई में हुमायूं का पीछा किया था और हुमायूं को जो है खदेड़ने के बाद उसने उत्तरी और पूर्वी भारत में संगठन का काम शुरू कर दिया था। 1542 में उसने मलावा पर विजय प्राप्त की और तत्पश्चात चंदेरी को जीता। राजस्थान में उसने जो है मरवाड़ा, रणभोर, नागौर, अजमेर, मेरता, जोधपुर और बीकानेर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उसने बंगाल में बागी अफगानियों को हराया और 1545 तक उसने जो है सिंध और पंजाब से लेकर पश्चिम में लगभग पूरे राजपूताना पर और पूर्व में बंगाल तक क्षेत्रों में खुद को जो है सर्वोच्च शासक के रूप में स्थापित कर लिया था। अब वह बुंदेलखंड की ओर मुड़ा। यहाँ जो है कालीजर के किले की घेराबंदी के दौरान 1545 में एक बारूदी विस्फोट के दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था जहाँ पर 1545 में जो है बारूदी विस्फोट की दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई और इसका जो है मकबरा सरासराय में बनाया गया, जो कि आज भी दर्शनीय है। अपने संक्षिप्त शासनकाल में शेर शाह ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासकीय और लगान पद्धति में जो है परिवर्तन लागू किया। उसमें से कुछ प्रमुख हैं। देखिए, कहा जाए तो शेर शाह सूरी के द्वारा जो बनाया गया प्रशासन ढांचा था वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और कहते हैं आगे चल के अकबर ने भी इस सारे जो है रूल रेगुलेशन का अनुसरण किया। कहते हैं शेर शाह सूरी के समय में पैसों का यानी रुपये का भी जो है पहला बार प्रयोग किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि रुपया का जनक जो है शेर शाह सूरी के शासनकाल में था, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज भी जो है ये दर्शनीय है। शेर शाह सूरी ने हर संभव जो है अपने साम्राज्य को दृढ़ बनाने के लिए कोशिश किया, तो ये जो कि ज़रूरी था। कहते हैं इसमें देखा जाए तो कुछ यहाँ पर जो है उसकी प्रशासनिक महत्व को यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरकारों और परगना स्तर पर जो स्थानीय प्रशासन को व्यवस्थित करना शेर शाह सूरी की पहली प्राथमिकता थी। मुख्य मार्गों पर यात्रियों और व्यापारियों के लिए सड़कों और सरायों या विशाल स्थलों का निर्माण कराया, जिनसे जो है संचार स्थापित करने में भी सहायता मिली। उसने पेशावर से कोलकाता तक जो है
जो ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण करवाया, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। कहते हैं ग्रैंड ट्रैक रोड के जब इसने निर्माण करवाया तो उसके समक्ष बहुत सी चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों को उसने सामना करते हुए बहुत सी सुविधाओं को जो है वहाँ पर दिया। कहते हैं सराय बनाया गया, कुएँ बनाए गए, मस्जिद बनाए गए, बड़े बड़े पेड़ पौधे जो है विस्थापित किया गया। तो उसने हर संभव जो है यात्रियों के लिए सुविधा का जो है बनाया गया, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, जो कि शेरशाह सूरी की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक माना जा सकता है। तीसरी बात यही दर्शाता है कि जो मृदा प्रणाली है, यानी जो पैसे की जो प्रणाली उसने विकसित किया था, भूमि के मापन और लगान के आकलन के उपाय का जो है मानवीकरण किया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जहां भूमि मापन, लगान के आकलन सभी को जो है आज आधुनिक युग की तरह जो है शेरशाह सूरी ने किया। तो इसे आप समझ सकते हो कि शेरशाह सूरी की जो है दिव्य दृष्टि थी, यानी वो दूर की बातों को जानता था, तभी जो है काफ़ी अच्छा प्रशासक था। बेशक इसकी मृत्यु जो है एक दुर्घटनावश हुई, जो कि बहुत दुखदायक परिस्थिति थी। सेना का पुण्य गठन और घोड़े के दागने की प्रथा को पुण्य शुरू करना इसी के समय काल में हुआ था। और आगे चल के अकबर ने भी इस बात का अनुसरण किया था कि सेना का जो है पुण्य गठन और घोड़े को दागने की प्रथा इसके दौरान चलाई गई, तो ये काफ़ी समय तक चलती ही रही। यानी शेरशाह सूरी की जो है प्रशासक नीति बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद पांचवा पॉइंट देखें तो न्यायिक प्रणाली को व्यवस्थित करना शेरशाह सूरी की सबसे बड़ी जो है शासक में से एक माना जा सकता है। यानी कार्य प्रणाली के रूप में देखें तो न्यायिक प्रणाली उसने बहुत अच्छी विकसित किया था और हर संभवतः जो है न्याय को जो है उचित ठहराया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र इस्लाम शाह। कहते हैं इस्लाम शाह उसका उत्तराधिकारी बना और इस्लाम शाह को अपने भाई जो है आदिल खान और कई अन्य अफगानी अभिजातों के साथ अनेक लड़ाई लड़नी पड़ी थी और 1553 में उसकी मृत्यु हो गई और धीरे धीरे अफगानी साम्राज्य शक्तिहीन होता गया। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हुमायूं ने फिर भारत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और 1555 तक आते आते उसने फिर से अपना खोया साम्राज्य वापस छीन लिया और द्वितीय अफगानी साम्राज्य को फिर से समाप्त कर दिया। तो कहते हैं जब शासन कमज़ोर होती रहेगी तो दूसरे बंदे जो है बहुत आसानी से जो है उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है और यही यहाँ पर हमें देखने को मिला कि शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इतने सशक्त नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं थे, जिसका फ़ायदा हुमायूं ने उठाया और हुमायूं ने बड़ी सरलता के साथ जो है उसको तहस नहस कर दिया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी और काफ़ी समझ के लिए ज़रूरी भी थी, जिसको आपको समझना है, सोचना है। और सोचना एक और बात है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाना भी है। और साथ में पहली बार अगर वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, समझदारी रहेगी, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि तिरपान स्टडी सेंटर भी जो है कई मायने में आपके लिए महत्वपूर्ण है।